नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के तौर पर स्थापित किया गया है। सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। उनमें से एक प्रमुख अंग के तौर पर न्यायपालिका है, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उनमें से न्यायपालिका का एक बड़ी महती भूमिका है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया played a vital role to ensure the rule of law in a democratic country like India. It ensured the enforcement of the fundamental rights and it resolves the dispute arises between the center and state among the citizens or a person. We have adopted the federal structure where the independence of judiciary is one of the most important characteristics which we have adopted. तो हमारी न्यायपालिका और मुख्यतः जो उच्चतम न्यायालय, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में जिसके बारे में प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान हमारे संविधान में इनकी निष्पक्षता को, इनकी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहां लिखित संविधान है, पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर अडॉप्ट किया गया है और ये हमारे लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को चेक करता है, whether the legislature is competent to enact the law or not, within their limits or not, within the act is in a consonance with the constitution or not. These are the responsibility which is imposed upon the Honorable Supreme Court, and that's why we can say our Supreme Court is a guardian angel of our constitution or fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकली आप देखेंगे कि रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1773। 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था, देयर वाज अ प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स the first time the Supreme Court was established by the regulation of Regulating Act 1773, and after that in 1861 the High Court Act was enacted in 1861, through which 3 high courts were established in Calcutta, Madras and Bombay, and that was the presidency town. And followed by, in 1935, the Federal Court was established by the Government of India Act 1935, and that was established in 1937. And after the commencement of the Constitution,
On 26th of January 1950, a Supreme Court was established. The first sitting of the Supreme Court was held by the 28th of January 1950, and recently we have just celebrated the Diamond Jubilee celebrations. So when you read the article 124 that talks about the establishment of the Supreme Court, there shall be a Supreme Court of India. There shall be a Supreme Court of India. When you read the where provision, then you will find the words used, the shall. There shall be a Supreme Court of India which shall be constituted by the Chief Justice of India and not more than the 7 other judges unless or until the Parliament makes provision. So it was very clear that the initial Supreme Court was 1 plus 7, but the Supreme Court Judges Number Act was passed in 1956, by which, by on a different occasions, this Parental Act was amended, and in the present time, the maximum strength of the Supreme Court is 33 plus 1, that is a 1 plus 33. It means the maximum limit is so far, or in a present time, 1 plus 33. So just make it clear कि प्रारंभ में 1 plus 7 थी और ये जो संख्या है ये बढ़ाई गई आपकी बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956. 1956 was enacted by the parliament, by which the number of Supreme Court judges increased. और वर्तमान की जो स्थिति है वो 1 plus 33 है, 1 the Chief Justice of India and 33 other judges. और आपको ये पता है कि Chief Justice of India is a master of roster. इन्हें कहा जाता है, इन्हें फर्स्ट among the equals भी कहा जाता है. Chief Justice of India को CJI ये मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर इन्हें बोला जाता है, और ये फर्स्ट एमंग द इक्वल्स होते हैं, समान लोगों में प्रथम होते हैं. जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है प्राइमस इंटर पेपर्स, फर्स्ट एमंग द इक्वल्स. So same here, they are a first among the equals. समान है लेकिन प्रथम है. तो ये जो आर्टिकल 24 का क्लास 1 है वो ये बता रहा है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो इतने लोगों से मिलकर के गठित होगी जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ के द्वारा ऐसा कोई उपबंध नहीं कर देता. पार्लियामेंट ने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, ऑनरेबल जजेस के नंबर्स को बढ़ाने के लिए प्रावधान था, और जिसका डिफरेंट टाइम्स अमेंडमेंट हुआ, और वर्तमान में जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ इन द 1956 इन 2019, इस पैरेंटल एक्ट में 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, और वर्तमान की जो फुल स्ट्रेंथ है वो आपकी वो 34 है, 1 plus 33. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो होगी, ऐसा प्रोविजन बताया गया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और दूसरा जो है प्रोविजन आर्टिकल 24 का क्लॉज 2 जो है वो उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है. और यहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि द एवरेज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट बाय हिज हैंड एंड सील्ड. तो
इनका जो अपॉइंटमेंट होगा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का, वो बाय द प्रेसिडेंट किया जाएगा। और ये सबको पता है कि इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, whether they are a Chief Justice of India or a judges of the Supreme Court, appointed by the President of India with the consultation of President, will take the or will consult with the consultation, ये बड़े मायने का शब्द है, इसको जरूर आप याद रखिएगा, कंसल्टेशन, with the consultation of judges of the Supreme Court, judges of the Supreme Court and High Courts, which he deems necessary, deems necessary. तो जिन्हें वो उपयुक्त समझते हैं, मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं यहां पे कि अपॉइंटमेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे विद द कंसल्टेशन, किससे कंसल्ट करेंगे? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। ये बात आपके प्रोविजन में बता दिया गया है, यहां पे ये बात क्लियर की गई है कि विद द कंसल्टेशन, आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग द वर्ड कंसल्टेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू मस्ट keep in mind this word, not assent, not approvals, not any other terms, that is only the consultation. Why I am saying this? Because it is interpreted widely. What does mean of the consultation which is mentioned in this provision? So, वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करता है जब तक कि वो अपनी 65 वर्ष की आयु को अटेन नहीं कर लेता है, प्राप्त नहीं कर लेता है। एंड व्हेन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, होल्ड द ऑफिस unless or until he just attained the age of 65 years. और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहां पे कि बहुत सारे आपने प्रोविजन देखे हैं जहां पे एक इनिशियल एज एज अ क्वालिफिकेशन आपकी एलिजिबिलिटी के तौर पर दी जाती है, बट देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यदि आप लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की आयु देखें तो दैट इज 25 एंड 30 रेस्पेक्टिवली, यानी लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। और इसी तरीके से आप विधानसभा और विधान परिषद के लिए देखें तो 25 और 30। यदि आप गवर्नर और राष्ट्रपति की उम्र देखें तो 35 इयर्स। एक मिनिमम एज जो है वो बता दी गई है। और यदि आप पंचायत के ग्राम प्रधान के तौर पर देखेंगे तो 21 इयर्स है। बट देयर इज नो सच एज लिमिट इज गिवन इन अ केस ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ऐसी कोई मिनिमम एज नहीं। और जब आप उनके साथ आप देखेंगे तो उनकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी मैक्सिमम एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है, इज नोवेयर प्रोवाइडेड। राष्ट्रपति की मैक्सिमम एज क्या है ये नहीं लिखा है, गवर्नर की मैक्सिमम एज क्या है ये नहीं लिखा हुआ, मिनिमम एज लिखा है। बट इन केस ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट यू विल फाइंड द जस्ट अपोजिट। मीन्स कि ये बात मेंशन की गई है कि he will hold his office
unless or until he just attained the age of 65 year. तो यहाँ पे 65 वर्ष बता दिया गया. And what was the logic behind this? That is mainly in a mind of the framer of our constitution. They were a very learned personality because they just want to incorporate in these institutions with the best talent in the judiciary. और ऐसा मेरा मानना है कि वो बेस्ट टैलेंट को लाना चाहते होंगे कि इनकी मैक्सिमम एज जो है वो डिसाइड किया जाए, जिससे इनके रिटायरमेंट के बाद नए माइंड्स, नए ब्रेन, नए जो है थॉट्स, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट ऑर्गेनिक एंड इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट्स. इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन and the scenario and the circumstances, and the interpretation of the constitution in such a manner which just meet out the any or a cope up with the such situations. And that's why there is a need of interpretations, there is a need of new philosophy and the new minds, and that's why it is given, it was given the maximum cap. And I think so. You may think better, something more. तो इनके बारे में जो प्रोविजन किया गया, मैं आपसे जो बता रहा हूं कि यहां पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स व्हेन ही डीम्स नेसेसरी. डीम्स, जब वो ऐसा आवश्यक समझते हैं. और कैसे करेंगे? बाय द वारंट ऑफ हिज हैंड एंड सी. तो साइन और हस्ताक्षर इज नॉट वेरी मटेरियल हियर, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि यहां पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स लिखा हुआ है. जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स. और यहां पे सिंपल सी बात है, इज नोवेयर मेंशन्ड द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट्स. what I want to convey, जो महत्वपूर्ण है, यहां पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दिस कंसल्टेशन इज डन विद द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नोवेयर मेंशन. तो जस्ट कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है. मैं जब लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था तो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क बताया था. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइडर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप वाइडर है देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट द कॉन्स्टिट्यूशन, the practices and conventions and the reports of the commissions and the judicial pronouncements. तो यहां पे वो कन्वेंशन और प्रैक्टिसेस भी शामिल होती है. दैट इज द कन्वेंशन, दैट इज द. और जब हम आगे पढ़ते हैं उसमें प्रोवाइजो के तौर पर, तो प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, व्हाट आई वांट टू सजेस्ट यू मस्ट रीड द वेयर. प्रोवाइजो में लिखा है, एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट और शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. should be always consulted with the Chief Justice of India if there is an appointment of except the Chief Justice of India. तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा यदि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाना है तो कंसल्टेशन मस्ट होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की. अदरवाइज ऐसा मैंडेटरी नहीं है. यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाना है तो सिर्फ कंसल्टेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये वर्ड लिखा हुआ है. तो मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं कि जो बातें
आपके दिमाग में हो कि ऐसा सीनियर मोस्ट जजेस का कॉन्सेप्ट प्रोविजन में है, बेयर में है, वो नहीं है। लेकिन हमारे यहां एक परंपरा के तौर पर सीनियर मोस्ट जजेस जो हो उन्हीं को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा रहा था और जा रहा है। बट देयर वॉज अ डेविएशन आफ्टर द केस ऑफ केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस के बाद जस्टिस A.N. रे को अपॉइंट किया गया 3 जजेस को सुपरसीड करके, जस्टिस सैलद, जस्टिस ग्रोवर और 3 जज जो सीनियरिटी में बड़े थे उन्हें बाईपास कर दिया गया और जस्टिस A.N. रे को अपॉइंट किया गया। एंड दिस अपॉइंटमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड लार्जली। तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो दलील पेश की गई ऐसे क्रिटिसिज्म पर, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि व्हाट वाज द प्ली on the behalf of the government of India. The first one was that we have taken the recommendations of the Law Commission report, which was issued in 1956. तो आप देखिए 1956 की घटना है। 1956 में लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था जिसमें यह बताया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है, इट शुड नॉट बी mere on the basis of seniority, it should be based on the basis of merit. ये मेरिट्स पर होना चाहिए, सीनियरिटी ही बेसिस नहीं होना चाहिए। इट वॉज रिकमेंडेड बाय द लॉ कमीशन इन 1956 और इसी रिकमेंडेशन को एडॉप्ट किया जा रहा है इनके द्वारा, ऐसा कहा गया। तो ये जो टाइम गैप था, व्हाई द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक द सच रिकमेंडेशंस in earlier, so that was a question। ये क्वेश्चन था। दूसरा, इनके द्वारा ये बताया गया कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए उनका टेन्योर लॉन्ग होना चाहिए और जस्टिस A.N. रे का जो टेन्योर है वो ज्यादा होगा तो सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म में और उसे स्टीयर करने में, स्टेबिलिटी लाने में मदद मिलेगी। बट दिस प्ली वॉज ऑल्सो अ वेरी सुपरफ्लुअस, क्योंकि जस्टिस ग्रोवर का टाइम पीरियड्स जो था वो जस्टिस A.N. रे से 1 मंथ ज्यादा था। यानी इनको अपॉइंटमेंट किया गया होता तो 1 महीने ज्यादा तक वो रह पाते, तो ये ग्राउंड्स भी जो है वो टिक नहीं पाया। अदर कंट्रीज के नजीर पेश की गई, यहां पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में, ब्रिटेन के बारे में बात किया गया, and that was not very applicable in Indian context। तो उस पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ना जाते हुए मैं आपसे ये बता रहा हूं कि देयर वाज अ डेविएशन आफ्टर द जनता सरकार आने के बाद से फिर वही प्रायोरिटी जो है वो रखी गई। तो मैं आपसे बेसिकली बता रहा हूं देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूट होगी, क्लॉज 1 कह रहा है। और दूसरा, इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? विद कंसल्टेशन किया जाएगा। किससे कंसल्ट किया जाएगा? विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स किया जाएगा। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई है तो, और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस इंक्लूड होंगे। तो अदर जज है तो चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन जो है वो मैंडेटरी होगा। कब तक ये अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे? 65 ईयर तक ये अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे, अनलेस और अनटिल दे रिजाइन। यानी इनका जो फाइनल कैप है, जो टेन्योर है, वो 65 ईयर की एज है। यदि उसके पहले यदि इनके द्वारा रेजिग्नेशन नहीं दिया जाता है तो
और जो रिजाइन किया जाएगा, द रेजिग्नेशन इज डन और एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये आप जान लीजिए कि नेशनल जस्टिस का भी प्रिंसिपल है। जब आप पढ़ते हैं तो ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उससे लोअर अथॉरिटी जो होती है वो नहीं आपको रिमूव कर सकती है, हटा सकती है। तो यहाँ पे जो रेजिग्नेशन होगा वो रेजिग्नेशन किसके द्वारा किसको एड्रेस किया जाएगा, वो प्रेसिडेंट को रिजाइन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति को संबोधित करते अपने हस्ताक्षर सहित इसका रेजिग्नेशन दिया जा सकता है। और 124 के क्लॉज 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 124 का क्लॉज 4 जो है वो रिमूवल का प्रोसेस बताता है, इनका रिमूवल का। जनरली कुछ स्टूडेंट्स जो है उनके इम्पीचमेंट के बारे में बात करते हैं कि महाभियोग लगा करके उनको हटाया जाता है। दैट इज इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। द impeachment only for the removal of the President of India, not for the removal of the judges of the Supreme Court. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रिमूवल वर्ड का यूज किया गया है, इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया गया। और उसकी जो प्रक्रिया बताई गई है वो 124(4) में बताई गई है। तो 124(4) की प्रक्रिया को फॉलो करके इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। तो पहली चीज कि वॉलंटरली ये रेजिग्नेशन दे देते हैं इन हिज राइटिंग एंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा कि 124(4) की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। तो प्रक्रिया क्या है इनके रिमूवल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। 124 की प्रक्रिया क्या है, मैं बेयर के प्रोविजन के साथ चल रहा हूं। तो सामान्यतया क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर कौन आएगा उसमें, जजेस आएंगे, कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। अब दो तरीका है उनका हटने का। तो रिमूवल के भी दो ग्राउंड्स हैं। दो ग्राउंड क्या है आपकी, यहाँ पे जो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बारे में बात किया गया है और इनकैपेसिटी के बारे में बात किया गया है। इफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इनकैपेबल और unable to perform his duty because of any incapacity, तो या उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर है तो उसके आधार पर उन्हें रिमूव किया जा सकता है। चलिए अब इनकी एलिजिबिलिटी देखा जाए कि कौन हु कैन बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसके बारे में जो प्रोविजन किया गया है आपका वो 124 के क्लॉज 3 में बताया गया है। पहली चीज तो जनरली जो पोस्ट होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट अ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजर। ये प्लेजर की पोस्ट नहीं है। और प्लेजर की पोस्ट मैंने आपसे बताया था कि जो प्रसाद पर्यंत के पद होते हैं देयर इज नो नीड टू फॉलो एनी प्रोसीजर, जस्ट लाइक पोस्ट ऑफ द गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, दीज आर द पोस्ट रिलेटिंग टू द प्लेजर पोस्ट है, प्रसाद पर्यंत के पद हैं। और ये जो प्रसाद पर्यंत के पद हैं इन पदों पर किसी प्रक्रिया के पालन की जरूरत नहीं होती, जबकि सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन्हें रिमूव करना है तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर विच इज mentioned in our constitution. Only then you can remove from their post. तभी आप उनको उनके पद से हटा सकते हैं। And what is the procedure? I will discuss in a later. But what would be the eligibility? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता पे मैं बता रहा हूं कि पहली चीज they should be a citizen of India. उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज है। And he has been for at least the 5 years judge of the high court or high courts. तो दूसरी जो एलिजिबिलिटी है इनकी, ये 5 साल किसी हाई कोर्ट के जज रहे हो या हाई कोर्ट्स के जज रहे हो इन अ सक्सेशन कंटिन्यूअसली, एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में 5 या 5 वर्ष से अधिक यदि जज रहे हैं, ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। या 10 वर्ष तक इनकी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस हो
या हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस हो इन सक्सेशन, इन सक्सेसिव मैनर, इन कंटिन्यूअस वे, तब इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड द नेक्स्ट वन, ही शुड बी अ distinct jurist in the opinion of the president. किसी और के ओपिनियन में नहीं, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. यदि कोई ऐसा विधिवेत्ता है, विधि शास्त्री है, तो उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो इनकी जो एलिजिबिलिटी है, यहां पे देखिए जरा. पहली चीज तो उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. सिटीजन ऑफ इंडिया पहली चीज है. दूसरी चीज यहां पे जो बताई गई है, 5 years जज ऑफ द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स, और यहां पे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो सक्सेशन में होना चाहिए. शुड नॉट बी ब्रेक, नहीं, वो 5 साल जो काउंट किया जाएगा. और इसी तरीके से 10 साल की आपकी 10 years की जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए. प्रैक्टिशनर हो आप, एडवोकेट हो, कहां पे, हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में. सिंपल सी बात है. यानी आप पहले बॉम्बे में प्रैक्टिस करते थे, आप दिल्ली हाई कोर्ट में आ गए, बॉम्बे हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए आप प्रैक्टिस करने, और जो टेन्योर है वो आपका 10 साल का है. तो ये होना चाहिए. और नेक्स्ट जो कंडीशन है, दैट इज द आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो आप इन द ओपिनियन ऑफ द. तो आपको ये पता है, ये जो प्रोविजन है आपका डिस्टिंग्विश्ड जो ज्यूरिस्ट है, इस प्रोविजन को अभी आज तक एप्लीकेबल नहीं किया गया है. ये ज्यूरिस्ट कोई भी हमारे यहाँ एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं बन पाया है. देयर वाज 2 नेम वाज रिकमेंडेड, लेकिन वो आज तक नहीं अपॉइंट किया गया है यहां पे. तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है आपकी कि 10 साल आपकी प्रैक्टिस हो, या 5 साल आप हाई कोर्ट के जज हो और भारत के नागरिक हो आप, या तो आप कोई विधिवेत्ता हो इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट. तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है आपकी, यहां एलिजिबिलिटी के तौर पर जो रखा गया है आपका. अब एलिजिबिलिटी हो गई. एलिजिबिलिटी के बाद अब इनका अपॉइंटमेंट करा देंगे आप. अपॉइंटमेंट के बाद अब ओथ की बारी आती, और इसी क्रम में आप देखिए जरा. पहली चीज तो बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. बेसिक एलिजिबिलिटी के बाद इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, और अपॉइंटमेंट होने के बाद अब ओथ की बात आ रही है, शपथ की बात आती है. तो इनके द्वारा जो ओथ लिया जाता है, वो ओथ इन्हें दिलाएगा कौन? तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक द ओथ. और ये ओथ दिलाता कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर द एनी अदर अथॉरिटी विच इज डेजिग्नेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो राष्ट्रपति के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त, और इस निमित्त यदि कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है उनके समक्ष. और थर्ड शेड्यूल में जो फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट के अंतर्गत जहां पे शपथ का फॉर्म है, यानी शेड्यूल 1 आपने पढ़ा है जो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. सेकेंड शेड्यूल सैलरी के बारे में, और थर्ड शेड्यूल जो है वो ओथ के बारे में बात कर रहा है. तो एज पर द थर्ड शेड्यूल इनके द्वारा ओथ लिया जाएगा. और यहां पे इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज किया गया है. रिस्ट्रिक्शन ये इंपोज किया गया है कि यदि इनके द्वारा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तौर पर यदि कार्य किया जा रहा है, तो किसी भी ट्रिब्यूनल्स में, किसी भी कोर्ट में और किसी भी अथॉरिटी के सामने अब ये कोई प्लीड नहीं करेंगे. तो ये इनका बार है. तो यहां पे मैंने आपको बेसिक चीज बताई कि 124 एक जो है वो सिंपली बात करता है सुप्रीम कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट 1+7 था इनिशियली, अब जो है 1+33 हो गया है. इसके लिए मैंने आपको बताया द सुप्रीम कोर्ट, ये जो नंबर ऑफ जजेस
एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, 1956 का एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसी के द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाई जा रही है। रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है वो 2019 का हुआ है और वर्तमान की जो संख्या है वो ये है, ये क्लास 1 आपको बता रहा है। अच्छा, फिर अब यहाँ पे आप देखें इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें हम, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो ये 124(3) में बताई गई है, ये ध्यान रखिए। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो मैंने आपसे बताया कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 5 वर्ष के जज हो या उससे ज्यादा, या 10 वर्ष की प्रैक्टिस हो, या डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए, ये एलिजिबिलिटी है, तो फिर आगे क्या होगा, फिर 124(2) में आ जाइए। 124(2) में अब इन्हें अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, इनका कंसल्टेशन होना चाहिए। तो कंसल्टेशन जो है किसके साथ होना चाहिए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी, जिसे वो आवश्यक समझते हैं। लेकिन यदि ये अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये ऑलवेज कंसल्ट करेंगे, सेल कंसल्ट, ये मैंडेटरी है इनके लिए कि इनकी कंसल्टेशन से ही अदर जज को अपॉइंट किया जाएगा। तो मैं आपसे ये बता दिया कि कंसल्टेशन का बड़ा मायने है, अभी आता हूं उसके इंटरप्रिटेशंस पर। तो ये इनका जो अपॉइंटमेंट है, चलिए अपॉइंटमेंट हो गया। अब अपॉइंटमेंट होने के बाद इनको ओथ लेनी है, तो ओथ जो है वो कौन दिलाएगा इनको, प्रेसिडेंट महोदय या उनके द्वारा डेजिग्नेट किया गया कोई अथॉरिटी। कैसे, जो 3rd शेड्यूल में आपका बताया गया है उस शेड्यूल के अंतर्गत इन्हें क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, ये ओथ लिया जाएगा इनके द्वारा, तब फिर ये अपॉइंट होंगे। अच्छा भैया, अब इनका जो टेन्योर है वो टेन्योर कितने दिन का है, अप टू 65 व्हेन ही अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स। और इसके पीछे की क्या लॉजिक है, मैंने आपको बता दिया कि 65 इयर्स ये जो है अटेन करेंगे तो, या उसके पहले भी ये रेजिग्नेशन कर सकते हैं। इनका रेजिग्नेशन जो एड्रेस होगा इन राइटिंग वो किसे होगा, प्रेसिडेंट। ये सब प्रीलिम्स में कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। तो रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू, या 124(4) में जो बताई गई प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है, इनके पद से इनको हटाया जा सकता है जो है। मैं अब इतनी बातें हो गई तो मैं आपको थोड़ा सा इस शब्द के बारे में बताना चाह रहा हूं कि यहां पे कंसल्टेशन शब्द का क्या मायने है, किन बातों को कंसल्टेशन माना जाएगा। तो मैं 2-3 केस का उल्लेख करना चाहता हूं, उन केसों के आधार पर आप थोड़ी सी अपने आप अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करिएगा। पहली जो केस थी वो आपकी एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस थी, जो जजेस ट्रांसफर केस के नाम से जानी जाती थी। जजेस ट्रांसफर केस, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पे ये जजेस ट्रांसफर केस के नाम से जाना जाता था। अब यहां पे ये बताया गया, कोई भी ऐसा कंसल्टेशन जो वर्ड यूज किया गया है यहां पे, कंसल्टेशन इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए। द कंसल्टेशन मस्ट बी वेरी इफेक्टिव, नॉट mere the consultation, it must be a effective consultation। ये प्रभावी होनी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट को जो कंसल्ट करके बताई गई है, जो रिकमेंडेशन दी गई है, इट इज नॉट बाइंडिंग ओवर द प्रेसिडेंट, यानी एनी recommendations which is given by the judges of the Supreme Court and High Courts, ऐसी recommendations को प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी उन्होंने कंसल्टेशन लिया और कंसल्टेशन पर आपने कोई रिकमेंडेशन दिया एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट,
तो ऐसे रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट जो है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्पष्ट किया गया। और यहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट है, सरकार को उस पर पूर्ण शक्ति प्राप्त है और ऐसे रिकमेंडेशंस को फॉलो करने के लिए वो बाउंड नहीं है। यानी इन दिस केस एसपी गुप्ता के केस में यह बता दिया गया कि यहां पे जो कंसल्टेशन होगा वो कंसल्टेशन पूर्ण होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। यानी इट इज अ वेरी नेसेसरी टू कंसल्ट विद द जजेस ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस, सॉरी, judges of the Supreme Court and High Courts. There is no any provision relating to the senior most judges of the Supreme Court. But here the President of India is not bound to follow or obey the recommendation which is given by the judges of the Supreme Court or High Courts. तो इस जजमेंट के द्वारा जो इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी थी, इट इज जस्ट एट अ स्टेक, दांव पे लग गई। और यहां पे इस जजमेंट को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि जुडिशरी इटसेल्फ हैज सरेंडर इट्स इंडिपेंडेंसी इन द फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यानी अपनी निष्पक्षता और अपनी स्वतंत्रता अपने हाथ ही इन्होंने एग्जीक्यूटिव के पक्ष में सरेंडर कर दिया है। तो फाइनल जजमेंट एंड फाइनल डिसीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वुड बी और शैल बी वेस्ट इन अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि आपने जो चीजें रिकमेंड करी है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, यद्यपि कंसल्टेशन जो है वो पूर्ण और प्रभावी होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इस जजमेंट को जो है हाईली क्रिटिसाइज किया गया कि एग्जीक्यूटिव के फेवर में ये डिसीजन था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड अगेन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1993। दूसरी केस जो महत्वपूर्ण है ये आपको जानना चाहिए। तो ये केस है आपकी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑफ एसोसिएशन, रिकॉर्ड ऑफ एसोसिएशन, इस कोरा का सुप्रीम कोर्ट ऑन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, तो ये भी यूनियन ऑफ इंडिया की केस है आपकी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 की केस है। और जिसमें एसपी गुप्ता में दिए गए जो डिसीजंस हैं उन्हें उलट दिया गया और यह स्पष्ट किया गया, क्लियर किया गया कि नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में, यानी जजेस के अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में और हाई कोर्ट्स के जजेस के ट्रांसफर के बारे में, द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज फाइनल। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। ये इस कोरा के केस में स्पष्ट किया गया और एसपी गुप्ता के मामले में जो निर्णय दिया था उसे ओवररूल किया गया। और यहां पे ये बताया गया कि परामर्श जो है अपने सहयोगियों से परामर्श करके जो व्यक्त करते हैं, यानी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कंसल्टेशन अपने एसोसिएट्स के साथ करते हैं वो महत्वपूर्ण है, वो बाइंडिंग होगा। यहां पे राष्ट्रपति और एग्जीक्यूटिव को सिर्फ जो नॉन क्वालिफाइड है, जो मैलिशियसली रिकमेंडेड है या वो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं की नियुक्ति पर रोक लगाने का अधिकार है। अदरवाइज एग्जीक्यूटिव हैज टू फॉलो द रिकमेंडेशंस which is given by the Chief Justice of India, that is the final। तो जो बातें
कार्यपालिका की प्रमुखता एसपी गुप्ता में दी गई थी। इस कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये ओवररूल किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्णय को और उनके रिकमेंडेशंस को वरीयता दी गई यहां पे। और यहां पे बताया गया कि परामर्श कंसल्टेशन डज नॉट गिव द डिस्क्रिशनरी पावर। ये कंसल्टेशन का जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है यहां पे, ये डिस्क्रिशनरी पावर सो नहीं करता है, वेदर इट इज फॉर एग्जीक्यूटिव और फॉर द जुडिशरी, चाहे वो कार्यपालिका के लिए हो चाहे वो न्यायपालिका के लिए हो। और यहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है, कोई रिकमेंडेशन दिया गया है, इट इज नॉट ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल बट इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द एज अ इंस्टीट्यूट एज अ होल। तो यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यदि कोई चीज रिकमेंड की जा रही है तो वो उनकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत परामर्श नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ होल एज अ इंस्टीट्यूशंस का बिहाफ पर दिया गया निर्णय है एंड दैट इज अ बाइंडिंग। तो मैं आपसे जो स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यहां पे जो कंसल्टेशन वर्ड का यूज किया गया है वो कंसल्टेशन मायने का है, महत्वपूर्ण का है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया without taking the consultations of the judges of the Supreme Court and High Courts can appoint any judge on his own discretion. No, not at all. ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि जो कंसल्टेशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अदर जजेस से जो करने हैं, जिसके आधार पर वो रिकमेंड करते हैं, उन्हें भी इस बात से कंसल्ट करना होगा अदर जजेस के। तो यहां पे ये बात क्लियर हो जाए आपको कि जो बात किया गया है कि इनका जो कंसल्टेशन होना चाहिए वो मिनिमम 2 जजेस से कंसल्टेशन होना चाहिए, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं। इन दिस केस दिस वाज इवॉल्व्ड एंड अगेन द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इन री प्रेसिडेंशियल, बहुत ज्यादा नहीं केस लिखाऊंगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। इन री, और इन री का मतलब होता है इन रेफरेंस होता है, और इन रेफरेंस का मतलब होता है कि जब हम आर्टिकल 143 पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात बताई गई है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उनको यदि रेफर किया गया है क्वेश्चन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उस पर वो अपनी राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं। और उसमें 143 में क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 है, तो क्लॉज 1 की जो बातें हैं वो बाइंडिंग नहीं है, यानी उस पर ओपिनियन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई ओपिनियन दे ली है तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। जबकि 143 क्लॉज 2 में जो बातें बताई गई हैं उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपनी ओपिनियन देना ही होगा, यानी मैंडेटरी है, बाइंडिंग है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको विशद तौर पे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन रेफरेंस, ये इन री प्रेसिडेंशियल केस में, इन री प्रेसिडेंशियल इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में, इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में परामर्श की प्रक्रिया यदि पालन किए बिना मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई यदि कोई सिफारिश है, कोई रिकमेंडेशन है, तो क्या उसे एग्जीक्यूटिव मानने के लिए बाउंड है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज नॉट टेकन और हैज नॉट कंसल्टेड विद द अदर जज, इन्होंने अपने से ही चीजें बिना अदर जजेस के कंसल्टेशन से यदि इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, प्रेसिडेंट को किसी नाम को रेफर कर दिया है, तो क्या एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट ऐसे अपॉइंटमेंट को करने के लिए बाउंड है। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज रेफर्ड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बातें यहां इनसे पूछी जा रही है कि आप जरा ओपिनियन बताइए कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज नॉट कंसल्टेड विद द अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स
and give the recommendations in this situations whether the President of India is bound to appoint. तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया कि यहाँ पे नहीं, इनका जो कंसल्टेशन है वो कंसल्टेशन होना चाहिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस, द 4 सीनियर मोस्ट जजेस, दैट इज द कोलेजियम। और ये कोलेजियम के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका जो कंसल्टेशन होगा वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट, यानी मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं, दिस प्रोविजन इज इवॉल्व्ड बाय द केस लॉ, नॉट इन अ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉलेजियम के बारे में जो ये 1+4 की बात की गई है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और इस 4 सीनियर मोस्ट जज में जो होंगे वो भावी यानी प्रोस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होने वाले हैं वो भी शामिल होंगे। ऐसे लोगों का जो ग्रुप होगा उनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशन होगा उसे मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड है। ये इनके अकेले का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि दिस इज नॉट ओनली द डिस्क्रिशनरी पावर, दिस इज अ वेरी पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर। ये भागीदारी की प्रक्रिया है, ये एज अ इंस्टीट्यूट्स एज अ होल को रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया है और इनका अपना रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जो है उसे मानने के लिए बाध्य होंगे और इन्हीं का जजमेंट जो होगा वो फाइनल होगा। यदि ऐसी कोई अयोग्य नियुक्तियां पाई जाती हैं तो उसे रोका जा सकता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसल्टेशन। यहां पे कंसल्टेशन के बारे में बताया गया कि इट इज नॉट अ कंसल्टेशन ऑफ द सोल जज, इट इज द प्लूरिटी ऑफ द जज, प्लूरैलिटी ऑफ द जजेस, नॉट अ सोल, एक नहीं, प्लूरल। और प्लूरल क्या? दैट इज द 1+4 and here the 4 is senior most judge which includes the prospective would be the chief justice of India, वो भी इंक्लूड होंगे उसमें। तो यदि यहाँ पे कॉलेजियम ने यदि किसी 2 लोगों के नाम का विरोध किया है तो उसका नाम रिकमेंड नहीं किया जाना चाहिए और ये बता दिया एनी प्रेसिडेंशियल के मामले में ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई। तो मेरे हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जो मैंने आपको एक बेसिक चीजें बताई उसे यदि आप रिकैप कर पाए 5 मिनट में तो ये बहुत ही बेहतर होगा। मैंने आपसे कहा कि 124 जो है वो जुडिशरी के बारे में बात कर रही है, 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेनली बात करती है। सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन एंजल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट इज अ वॉच डॉग एंड वॉच टावर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। It just a strike a balance between the fundamental rights and protect the fundamental rights of their citizens and persons और उन्हें enforce करता है। It is a final interpreter of the constitution। ये highest appellate court of the nation and the country और हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था में इनकी निष्पक्षता बरकरार रहे, इनकी इंडिपेंडेंसी बनी रहे, इसके लिए बहुत सारे प्रोविजन हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं बाय द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, और मैंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में एक पूरा लेक्चर बनाया है, आप उस पर जाकर के उन सारे प्रोविजनों को देख सकते हैं जो कि न्यायपालिका की निष्पक्षता को मजबूत करते हैं, उनके इंडिपेंडेंसी को मजबूत करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो सबसे पहली बार आया वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के द्वारा है जिसे स्टैब्लिश किया गया 1774 में, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट एक्ट 1861 है जिसमें 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए प्रेसिडेंसी टाउन के लिए, और फिर फेडरल कोड स्टैब्लिश किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस कोर्ट वाज established in 1937 and again after the commencement of the constitution 1950। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट जो
है वो आई है। और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी, मैंने आपको बताया कि 28 जनवरी और 1950 को पार्लियामेंट हाउस में हुआ था, कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग नहीं थी, वहीं पे इनकी फर्स्ट सिटिंग हुई। और पहले इनकी जो संख्या थी जो 124 में बताया गया है 1+7, और फिर उस संख्या को पार्लियामेंट ने लॉ बना करके बढ़ाया है। जो एक्ट था वो मैंने आपको बताया कि द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, दैट वाज अ पैरेंटल एक्ट and was amended in a different times, but the latest amendment is 2019 2019 में ये जो है अमेंड किया गया, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो ये है। फिर मैंने आपको बताया कि इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे, यानी एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो रोल क्या है फॉर द अपॉइंटमेंट, द हेड ऑफ द स्टेट इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यूनियन पे बात करें तो प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है बाय द वारंट ऑफ हिज हैंड एंड सील, इनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये मैंने आपको बताया, कंसल्टेशन के द्वारा। और कंसल्टेशन की मायने क्या है, तो इनका इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया एसपी गुप्ता के केस में बताया कि कंसल्टेशन इफेक्टिव होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और ये कंसल्टेशन जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया गया है वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। तो मैंने बताया कि दिस जजमेंट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड बट इट वाज ओवररूल्ड इन अ केस ऑफ अगेन स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन को फाइनल माना गया। और फिर मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिकमेंडेशन होगा ये आपके इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में स्पष्ट किया गया कि उनका अकेले का नहीं होगा, बट ऑन द बिहाफ ऑफ द कोलेजियम, जो कि कोलेजियम 4 सीनियर मोस्ट जजेस से मिलकर के बना होगा, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस के मायने में जो कोलेजियम होगा वो ये होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर होना है उसका जो रिकमेंडेशन होगा वो भी कोलेजियम के थ्रू, और यदि सुप्रीम कोर्ट में उनका अपॉइंटमेंट होना है तो भी कोलेजियम के थ्रू, और उनकी संख्या जो है 1+4 दैट इज 5, ये बात आप याद रखिएगा। और फिर मैंने आपको बताया कि इनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया कि सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन के बाद इन्हें ये जो है आपके 5 इयर्स की इनकी जो है जजशिप हो एक हाई कोर्ट में, एक से अधिक हाई कोर्ट में, और फिर 10 वर्ष की प्रैक्टिस हो हाई कोर्ट्स में या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में, या ये डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन मैंने आपसे बताया कि इस क्लॉज का अभी तक का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी 1950 से लेकर के 2024 तक में इसका प्रयोग नहीं किया गया है, किसी डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट को एज अ जज अपॉइंट नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, अब यदि इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है तो ओथ जो लिया जाएगा वो 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा बिफोर द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इन्हें ओथ दिलाएंगे, या उनके द्वारा कोई डेजिग्नेटेड व्यक्ति है तो उन्हें ऐसी ओथ दिलानी होगी, देते हैं, और ये उनके द्वारा लिया जाएगा। ये कब तक अपने पद पर रहेंगे? 65 वर्ष तक। उसके पहले जब तक इन्होंने अपनी कोई रेजिग्नेशन ना दे दी हो या इन्हें रिमूव ना कर दिया गया। रिमूवल के लिए जो ग्राउंड्स बताए गए हैं वो 124(4) में बताया गया है। 124(4) में 2 ग्राउंड्स बताए गए हैं। पहला जो ग्राउंड है वो आपका फर्स्ट ग्राउंड द प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा जो है इनकैपेसिटी। 2 ही ग्राउंड है, याद रखिएगा, और ये प्रसाद का पद नहीं है, इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। यदि ऐसा कोई मोशन लाया जाता है तो मैंने आपको बताया कि इनका जो रिमूवल है वो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। रिमूवल स्पेशल मेजॉरिटी से, इसका मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा जिस सदन में इसे लाया जा रहा है उस सदन के प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 बहुमत जो उस सदन के सदस्यों के बहुमत से कम ना, दैट इज अ स्पेशल मेजॉरिटी। और यहां एक सदन के द्वारा उसे पारित किया जा रहा है तो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन के द्वारा भी
present and voting की 2/3 majority, this is not less than that of the total majority of that house, not less than, और उस सदन से पास किया जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन अ सेम सेशन, यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सेम सेशन, यानी जो आपके पास सेशन है वो आपको पता है, जनरली आपने देखा हुआ है कि लोकसभा में 3 ही सेशन होते हैं, एक तो जो है आपका बजट सेशन होता है, फिर आपका रेनी सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है। तो जिस सत्र में इसे लाया जा रहा है उसी सत्र में ये दोनों सदनों के द्वारा इसे पास होना चाहिए। यदि वो सत्र बदल गया, सेशन बदल गया, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो बिल लाया जाएगा, ऐसा जो प्रपोजल है, ये लैप्स कर जाएगा, अगेन इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे इनके जो रिमूवल की प्रक्रिया है 124(4) की, सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव करने के लिए, जो 217 में बताया गया है। यही सेम प्रोसीजर है आपका जो आपके कैग के रिमूवल के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे इनका रिमूवल किया जाएगा और उसके लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट जो पास किया गया है, उस एक्ट के अंतर्गत इस बात की जांच किया जाएगी कि इनका जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी आई है या नहीं। इसको और भी विशद से पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपका कोई डाउट हो तो जरूर बात करिएगा। मैं आपसे और स्पष्ट कर दूं, इसी के साथ साथ 2 प्रोविजन आपको और पढ़ देने चाहिए, बस 2 मिनट में आपको बता दूं। तो फिर ये 126 का भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन 126 जो है ये एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात करता है, और 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन द सीट ऑफ द चीफ जस्टिस इज वैकेंट बाय द इनकैपेसिटी, किसी अक्षमता के कारण, कि व्हेन ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो प्रेसिडेंट उन जजों में से किसी भी जज को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये एब्सेंस है, उनकी सीटें वैकेंट है, तो ड्यू टू द एब्सेंस की वजह से या अदरवाइज किसी कारण की वजह से, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो मैं बताना आपको चाह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट कर सकते हैं 126 में। और यहाँ पे एड हॉक जज के बारे में बात किया गया है, ये तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बात करता है। तो यदि किसी सत्र या किसी कोरम को पूरा करने के लिए यदि नंबर ऑफ जजेस कम है, कोरम को पूरा करने के लिए, किसी सत्र को चलाने के लिए जो मिनिमम कोरम है, यदि वो संख्या कम है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड विद द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को अप्रूव करेंगे बाय द अप्रूवल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया with the prior approval of the president and request to the chief justice of high court, concerned high court, कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिनमें योग्यता हो सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स, कि वो उस कोरम को लिए, या कोरम एडॉप्ट का मतलब होता है कि फॉर अ पर्पज, यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए या किसी विशेष समय के लिए तदर्थ बोला ही जाता है, फॉर द स्पेसिफिक पर्पज टू फुलफिल द कोरम, के लिए वो उस हाई कोर्ट के चीफ जज से इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि हाई कोर्ट के जज को जिसमें योग्यता हो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की, तो उन्हें लाया जा सकता है और इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करते हैं।
तो ये जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस की जो बात हो रही है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, जबकि एडहॉक जजेस को जो हाई कोर्ट से लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें डेजिग्नेट करते हैं एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डेजिग्नेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो तदर्थ न्यायाधीश के बारे में जो प्रोविजन किया गया है 127 में किया गया है, 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात किया गया है, जजेस के बारे में मैंने आपको 124 में बता दिया गया। 125 जो है इनके सैलरी के बारे में बात करता है, सामान्य बात है। और फिर हम इनके जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी 1-2 लेक्चर आपका इस पे चलेगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।